Master Shri Prabodhanand Saraswati Swami जी and all the dignitaries, हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। जिस शुभ घड़ी का हम सबको बहुत देर से इंतजार था, जिस पल का हम सब इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आ चुका है। आप सभी का पुनः अभिनंदन। चारों तरफ खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। चारों तरफ खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की। स्वामी जी, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। A very good morning to everyone present here. On behalf of Sikka College, I, Pratibha Saraswat, heartily welcome the Most Honorable Param Pujya Swami Prabodhanand Saraswati Ji, Center Head of Chinmay Mission Indore, Chairman Sikka Educational Trust, Mr. P. Babuji Sir, Managing Trustee Dr. R. Sridhar Sir, Mr. V. Mani Sir, Principal Dr. Gunjan Shukla Madam, Vice Principal Professor Vagmita Dubey Madam, dear faculty members, staff and students, to today's most special and wonderful session on shaping of youth. Let's have a huge round of applause for everyone. Youth play a crucial role in driving societal progress towards peace, justice and strong institutions. They are the one who will inherit the challenges and opportunities of the future, making it essential to involve them in shaping the future of our country. It is essential to nurture in them a sense of responsibility and instilling in them the understanding of being human and their role in serving the society. Our hearts are filled with immense pleasure and gratitude with the serene and powerful presence of Swami Prabodhanand Saraswati Ji Swami, who is with us here today. So let's have a huge round of applause once again. Light is considered as a symbol of auspiciousness and abundance. Light brings brightness with it and removes the darkness. Following the custom of lamp lighting at the beginning of an event, I would request the dignitaries to please proceed to light the auspicious lamp. शुभम करणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर। लैम्प लाइटिंग brings a lot of positivity in the entire atmosphere where it is lit and impart piousness all around. Light is the symbol of prosperity, abundance, and where it is lit, the whole atmosphere is filled with spirituality and inner awareness, leading to attainment of perfect knowledge, प्रकाश से उज्जवल होता है ये सारा संसार। सरस्वती माँ हम सब पर अपनी कृपा बनाए। इस दीप प्रज्वलन के साथ हम कामना करते हैं कि अंधकारों को दूर करेंगे और हमें
प्रकाश की ओर ले चलेंगे। Thank you so much. Thanks a lot. It is with great joy and respect we welcome our esteemed dignitaries. I will request our chairman, Mr. P. Babuji sir, to welcome Swami Prabodhanand Saraswati ji with a pearl garland. स्वामी जी आपका हृदय से स्वागत करते हैं। चेयरमैन सर माला पहनाते हुए स्वामी जी को आपका बहुत बहुत स्वागत है। Now I will request Managing Trustee Dr. R. Sridhar sir to welcome Swami ji with a sapling. Thank you so much. Let's have a huge round. स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत तथा अभिनंदन। Now I will request Principal Dr. Gunjan Shukla Madam to welcome our Chairman Mr. P. Babuji sir with a bud. I will entreat Principal Ma'am to welcome Managing Trustee Dr. R. Sridhar sir with a bud. Principal Madam to please present a bud to Madam who has accompanied Swami ji, Lakshmi Madam. To welcome Lakshmi Madam. Thank you so much Madam for gracing the event. Thanks a lot. Let's have a huge round of applause. रमणे करे कणे इति रामः, जो कण कण में बसे वही राम है। ब्रह्म है जो इस सर्वोपरि सत्ता से हमारा साक्षात्कार कराता है। It originates in the heart and is the expression of joyous thrill that wells up from the heart when we remember God. ऐसे ही एक सुंदर राम भजन लेकर आ रहे हैं BBA के स्टूडेंट प्रथम शर्मा और तबले पर संगत कर रहे हैं हमारे टीचर्स मिस्टर हेमेंद्र महावर सर और साथ में हारमोनियम पे साथ दे रहे हैं मिस्टर अमित लासोडकर सर। Let's have a huge round of applause for this सुंदर भजन जो अभी हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। है दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, है दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन
थैंक यू सो मच प्रथम, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति। तुलसी मेरे राम को रीछ बजो या खींच, मौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात श्री राम का पूजन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है। तो इस मनमोहक प्रस्तुति के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। Now I will request Principal Dr. Gunjan Shukla Madam to please come for a welcome address. सुप्रभात। धन्यवाद प्रतिभा मैम। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय स्वामी जी, हमारे आदरणीय चेयरमैन सर, आदरणीय मैनेजिंग ट्रस्टी सर, स्वामी जी के संग पधारे मैडम लक्ष्मी और जो बच्चे आए हैं उनके साथ में, उप प्राचार्य सिक्का कॉलेज, विभाग अध्यक्ष सिक्का कॉलेज, शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों, ये हम सभी के लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी के साथ स्वामी जी उपस्थित हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए। आज का जो विषय है शेपिंग ऑफ यूथ, मेरा मानना है कि अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात करें तो युवा को आकार देना या युवा निर्माण सर्वोपरि है। शेपिंग ऑफ यूथ के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षकों का, उनके माता पिता का भी बहुत गहरा योगदान बनता है। When you are studying, you are developing your intelligent quotient. When you understand yourself well, you develop your emotional quotient. And with the help of spirituality, अध्यात्म का बहुत ही गहरा योगदान हम सभी के जीवन में होता है। बिकॉज आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड यू विल बी फेसिंग मेनी challenges when you will be growing. So spirituality is that power which guide you, which help you to manage your day-to-day challenges, to attain your task, to attain your goals and achievements in life. स्वामी जी, मुझे बताते हुए अत्यंत ही हर्ष हो रहा है कि हमारा जो महाविद्यालय परिवार है ये एक छोटा सा परिवार है। एट प्रेजेंट मेरे पास कुछ 550 बच्चों की स्ट्रेंथ है, 6 डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत ही अच्छी टीम है फैकल्टीज की। मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि मोस्टली फैकल्टीज दे आर नेट क्वालिफाइड एंड PhD and they are so dedicated, day and night they are working for the development of students and development of institution. We are so glad to have you with us today. I am grateful to Chairman Sir and Managing Trustee Sir for giving us the opportunity to organize this wonderful session. And I believe कि सिर्फ पढ़ाई ही आपको पूरा नहीं करती, कहीं ना कहीं इस तरह के माइथोलॉजिकल या स्पिरिचुअल सेशंस आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So we all are very lucky that we got the opportunity to attend this wonderful program. I once again welcome Swami ji. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, madam. We are privileged to have Dr. R. Sridhar sir, Managing Trustee, Sikka Educational Trust with us, and his relentless work and enthusiasm towards work inspires us all. I will now invite Dr. R. Sridhar sir to come and address the gathering. Please welcome R. Sridhar sir with a huge round of applause. Good morning, Ananda. And honorable guests here, and respected honorable chairman and my dear students. It is indeed a great pleasure and a divine blessings of Almighty that we have our great Swami Prabhupada Saraswati Center at Chinmaya Mission here. And it is our blessing that he is here with us to throw light on the expert talk on shaping of youth. The shaping of youth is really required, and we are all here to listen to him. Actually, the young generation has the power and potential to bring the change and shape the destiny of our nation. Prabhuji
Swamiji will throw light on that, and undoubtedly the youth of India hold the key to the nation's progress and development. With a fresh perspective, innovative ideas and boundless energy, they have the power to drive positive changes in the society. The role of the youth in shaping India's future cannot be underestimated. They should have the courage to explore new areas and move on the unexplored path. But we also see that they often face various challenges which hinder the potential and well-being. It is necessary to address these issues and work towards the physical and mental being. So today's session would lead you to introspect and find the solution. So once again, I am very thankful, and indeed we are blessed to have Swamiji with us. And Swamiji, I am very much thanking you on behalf of the trust and on behalf of our Sikha Educational Society. Thank you. Thank you so much, sir. I will request sir to please play a video on Chinmay Mission. Chinmay Sharanam Ashram is situated in Vijayanagar, Indore, a city rich in cultural heritage, situated between two Jyotirlings. Moving 50 kilometers north is the Mahakaleshwar Jyotirling at Ujjain. Moving 70 kilometers south is the Omkareshwar Jyotirling. Sharanam Ashram is dedicated to provide individuals a spiritual knowledge, providing tools for personal and spiritual growth and self-realization through the study and practice of Vedanta. It conducts various activities including spiritual discourses, Rudravishekam, Vishnu Sahasranam Archana, Ram Sahasranam Archana, Bhagavad Katha Saptah, meditation sessions, educational programs, charitable initiatives, cultural events, and many more spiritually enriching practices. It provides a space for individuals to deepen their understanding of Vedanta philosophy and engage in spiritual practices through Chinmay Yuva Kendra under the guidance of Pujya Swami Prabodhanand Saraswati Ji. It helps inculcate the values of spirituality, selfless service, and holistic development in Bal Vihar camp. It also serves as a hub for community service initiatives and charitable activities aimed at uplifting the local community and fostering spiritual development among its members. It offers spiritual guidance and educational resources to people of all ages and backgrounds. Get a golden opportunity to get associated with Chinmay Sharanam Ashram, Indore. Hari Om. थैंक यू सो मच। ऐसा बहुत कम ही होता है जब इतने ऊंचे आध्यात्म स्तर तक पहुंचने के बाद हम, जैसे आश्रम में मेरे को मौका मिला था उस दिन प्रिंसिपल मैम के साथ में उनको सर को मैं इनवाइट करने गई थी। सर जो चिन्मय शरणम आश्रम का जो पूरा एक वातावरण था वो बहुत ही स्पिरिचुअल था। मतलब वहाँ पे एक ऐसी शांति थी जिसकी हम सबको तलाश रहती है कि हाँ ये शांति हम सब अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और चिन्मय शरणम आश्रम वो आश्रम है जो अपने साथ में यूथ को जोड़ रहा है और बहुत ऐसी क्रियाएं और ऐसी एक्टिविटीज़ करवा रहा है जो कहीं ना कहीं हमारे यूथ के साथ जुड़ी और उनके आध्यात्मिक और साथ साथ में उनके
उत्थान से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ कराते हैं। इसके लिए बहुत बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाएंगी। When darkness surrounds you, turn on the light. Acknowledge the supreme power in your life. His loving care will guide you. When surrounded by confusion and darkness, turn on the light. Let's turn on the inner light with the auspicious presence of Swamiji, who has graced this event and blessed us. I am extremely fortunate to give an introduction of Swami Prabodhanand Saraswati Ji. August Sri Prabodhanand Saraswati Ji is a devout monk who continues the divine legacy of great spiritual masters Swami Tejabhayanand Ji and Swami Subodhanand Saraswati Ji. Swami Ji is the center head of spiritual organization Chinmay Mission, which is known for its persistent efforts in emphatically teaching Vedanta and enhancing social and educational well-being of masses. There are in total 350 centers of Chinmay Mission all over the world. It is running one university, 150 schools, one being international, and many hospitals. The youngsters who studied under the guidance of Swamiji got eminent positions in administrative services. Swamiji, as the center head of Indore Center, is with utmost dedication looking after the social, educational, spiritual activities conducted at the center for last 22 years. Swamiji hails from a religious Brahmin family, was born and brought up in Lucknow, Uttar Pradesh. He got graduated from Lucknow University, acquired a diploma in computer applications. Soon after, he started an intense preparation for IAS examination. Observing his quest for enlightenment, his father realized that the pursuit of Vedantic knowledge would be an apt way for him to attain self-realization. He took a difficult decision with an effortless ease of renouncing the material world and entered the blissful world of spirituality at the tender age of 22. He studied at Sandipani Himalaya Chief Learning Center of Chinmay Mission at Sibari, Himachal Pradesh. He devoted himself extensively and rigorously to study Prasthanatrayi, the knowledge of Upanishad, Gita, Brahma Sutra, Bhagavad, Advait Siddhant, spiritual scriptures. Under the proficient and effective guidance of accomplished and gifted masters Swami Subodhanand Saraswati Ji and Swami Advaitanand Ji. His unsurpassed knowledge of Advait Vedanta and his discourses on how to apply the principles of Vedanta to deal with the mundane problems of modern world inspired and motivated many to lead their life spiritually, peacefully and positively, while serving in their respective areas of working, be it being the employees of multinational company, hospitals, bureaucrats or students of schools and colleges. After attaining the supreme knowledge from Himalaya, he came to Malwa, and since then he has continued to be the source of light and inspiration to the people of all age groups, all races, culture and creed. Through his YouTube channel, he is spreading the knowledge of Vedanta, simplifying the very difficult to understand principles of Vedanta so that the common man could assimilate the importance and efficacy of age-old principles propounded by our own great ancient sages to attain the peace. Not only people of Indore but also from other part of North India like Jaipur, Kolkata, Satna, Gwalior, Rewa, Dehradun, Himachal Pradesh, Lucknow and Nepal got benefited with his one-to-one conversation and spiritual discourses. Not only people around him got influenced by him, but he has expanded his positive influence to the people residing abroad also. He has organized more than 78 camps for holistic and all-over development of children, imparting them the values and connecting them to their divine spiritual roots of Indian culture. His discourses based on Vedanta are a perfect blend of ancient and modern philosophy, casting a long-lasting influence.
His immaculate skill in explaining the most difficult of things in a very easy way has attracted people of all age groups and all backgrounds. The youth get effortlessly connected with him because of his friendly, down-to-earth, loving nature. With the strength of his character and skillful transmission of the perennial wisdom of Advait Vedant, he has shown path to millions of people to overcome the hurdles of life and to attain liberation of soul. The other wings of Chinmay Mission are Chinmay Yuva Kendra, Bal Vihar and Vedant Study Group are running successfully under his skillful and brilliant guidance. So, Swamiji, now we are all eagerly waiting to listen to you. So let's welcome Swami Prabodhanand Saraswati ji on this stage. Please welcome him. मैं आपके सामने अपनी बात रखूं, उसके पहले 3 बार हम लोग लंबा ओम बोलते हैं, ठीक है? एक साथ सभी लोग बोलेंगे, आंखें बंद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आदरणीय बाबूजी, श्रीधर जी, मैनेजिंग ट्रस्टी और आपकी प्रिंसिपल महोदया, वाइस प्रिंसिपल, आपके बीच आने पर फिर से यंग महसूस करने लगा। बुढ़ों के साथ रहते तो बूढ़ा महसूस करता हूँ, जवान के साथ रहता। बहुत बड़ी चीज है कि आप किसके साथ हैं, और मेरा इशारा आप समझ रहे हो कि आप किसके साथ रहते हैं। वो आप पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत असर डालता है, और ये बात बहुत बाद में समझ में आती है। लेकिन मैं अपनी बात आपके रखूं, आपको देखकर इतने यंगस्टर्स को मेरा दिल जो बाग बाग हो गया आपको देख के कि वाह, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे होना चाहिए भारत देश। और कभी मुझे लगता है कि काश मैं भी आपके जैसा वहां बैठकर किसको सुनता, लेकिन उस समय ऐसा माहौल नहीं था। धर्म का मतलब लोग क्या समझते थे, बाबा बन गया, साधु बन गया, कमंडल लेके टहलेगा। लेकिन आज के बाबा आपसे ज्यादा मॉडर्न है, आपसे ज्यादा मॉडर्न है। लेकिन इस लाइफ में भी अपना बहुत मजा है, आपसे बताऊं। और मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूं।
एंड थैंक्स टू प्रिंसिपल मैम, मुझे उम्मीद नहीं थी ये हमारे यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखा कि आपने लिखा है। मुझे लगता नहीं कि आश्रम से इतना बढ़िया दिया गया होगा। आई डोंट नो, जिसने भी लिखा मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि विद्यार्थियों के लायक इसको लिखा गया। जिसने भी लिखा देन क्रेडिट गोज टू दैट पर्सन। मैं बनने चला था कलेक्टर और आईएएस और बन गया बाबा। और बाबूजी और श्रीधर जी, आपको ये हमारे श्रीधर जी तो मुझे इसलिए अच्छी लगे कि ये हमारे चिन्मय युवा केंद्र के सदस्य रह चुके। सोचिए आप, जिस यंगस्टर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ वो खुद रह चुके थे, और भी अच्छा लगा देख। और कहीं शायद मैं बन भी जाता। आईएएस 22 या 24 में मेरा रिजल्ट आया और मुझे लगा कि मैंने प्री निकाल लिया, और तब तक मैं C++ में मैंने कुछ प्रोग्रामर का कोर्स किया और आईएएस का प्री निकाला। लेकिन मेरे क्रेडिट गोज टू माय फादर। उनका कहना था कि इसमें कुछ रखा नहीं है, तुम्हें कुछ और बनो। और फिर वो क्यूरियोसिटी मुझे इस ओर लेकर चली गई ना। हमारे गुरुदेव युवाओं से स्वामी चिन्मयानंद, वो तो इंग्लिश ही बोलते थे, साउथ इंडियन थे। वो एक स्लोगन बोलते थे, जनरली जब आप समाज में जाएं और मैं युवाओं की बात करता हूं तो बड़े एल्डरली लोग क्या बोलते हैं ना, यूथ आर यूजलेस, यूजलेस। बट गुरुदेव क्या बोलते थे ना, दे आर नॉट यूजलेस, दे आर यूज्ड लेस। नो द डिफरेंस? नॉट यूजलेस गाय, यूज्ड लेस। और वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कोई बताने वाला, उनके जमीनी धरातल पर पहुंचने वाला। तो मैं एक पहला थॉट आपके सामने रखता हूं, वेरी इन शॉर्ट, नॉट एक प्रवचन जैसा नहीं, आपसे एक इंटरैक्टिंग सेशन जैसा। जैसे आपके प्रिंसिपल ने अभी बोला, और एक बात बहुत अच्छी बात कही है, there is a difference between the successful and happiness life. अब रटा रटा जवाब युवाओं से पूछो क्या उद्देश्य है, सफलता। जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, सफलता। मैं आपको इसको पलट रहा हूं, जिन लोगों के पास, अच्छा ये भी ना, सफलता मतलब क्या? कुछ मदद कर सकते हैं मेरी? सफल मतलब क्या? हाँ, सुख समृद्धि धन बल। थोड़ा सा तेज बोलो ना। सुख समृद्धि, सुख समृद्धि, वेरी गुड। और धन बल। आपके पास एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड, वाइफ हो, एक कार हो, बंगला हो, सैटरडे संडे आप बाहर जा सकें, खूब सारी पार्टियां कर सकें। बट मुझे एक बात बताइए, जो हम लोग सोच रहे हैं जिसको सफलता इन मॉनेटरी कॉन्टेक्स्ट, वो हॉलीवुड एंड बॉलीवुड के पास है या नहीं? आप बताइए ना, क्या लगता है? पैसा नहीं है उनके पास? हम लोग फ्लाइट में जाते तो बड़े खुश होते हैं कि आज फ्लाइट में जाएंगे, उनके पास पर्सनल चॉपर है। कौन सा भोजन उनके पास नहीं है, कौन सी सुख सुविधा नहीं है? बट ध्यान रखिए, डिप्रेशन के मरीज वो है और आत्महत्या वो कर रहे हैं। जिया खान ने क्या किया? क्या नहीं था उसके पास में? इतनी सुख समृद्धि के बाद में भी आत्महत्या एंड डिप्रेशन एंड ड्रग्स, बस यही सफलता है आपकी? मैं आपके सामने बहुत हम्बल ये रखना चाहता हूं, सक्सेसफुल लाइफ इज अलग है एंड हैप्पीनेस लाइफ इज अ डिफरेंट। कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसा ही सफल हुए, और सफलता के बाद भी यदि आप प्रसन्न नहीं रह सकते तो क्या करेंगे उस सफलता का? सोच के देखिए, सफल हो गए, कार आ गई, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, बट आप मन से पूछे तो आप खुश नहीं है। और एक बात यंगस्टर्स आप जरूर याद रखिए, शायद हो सकता है आपको हार्श लगे,
जो अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं कर सकता सेल्फ की, वो दूसरे को क्या एंजॉय कराएगा? वो सिर्फ आपके पैसे ठग रही है या पैसे ठग रहा है आपको रेस्टोरेंट ले जाके, और कुछ नहीं। सिर्फ थोड़े समय के लिए चार्मिंग फेस, थोड़ा व्हाट्सएप रात में चैटिंग हो गई, थोड़ी अच्छी बातचीत हो गई, थोड़ी इंटेंस बात हो गई, हमको लगता है बस यही जीवन का प्लेजर है। एक दूसरे को ठग रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। जो इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे गुरुदेव इसको बोले, और ये गीता का सूत्र है, आत्मैव आत्मना शत्रु आत्मैव रिपुरात्मना। सी, आपका दुश्मन कोई बाहर नहीं बैठा है, ये आपका भूल है। आपका दुश्मन आपका मन है, और आपका सबसे बड़ा मित्र कोई है तो आपका मन है। इसको ध्यान में रखिए, कभी शायद आप बड़े होंगे तो ये बात खुलेगी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपनी हैप्पीनेस की चाबी किसी की पॉकेट में मत डालिए प्लीज। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन के नाम पर सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस की चाबी दूसरे की पॉकेट में डाल रहे हैं। और जब आपको खुश होना है ना, तो आपके पास वो चाबी अवेलेबल नहीं, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल। मैंने आपने अपना टाइम एंड एनर्जी सब क्या कर दिया, गवा दिया। नाउ द फर्स्ट, इस बैचलरशिप को एंजॉय कीजिए। कठोर बोला आपको बड़ा बुरा लगेगा, हर लड़के के पास एक लड़की है, हर उसके पास एक पर्सनल चैटिंग के लिए कोई अवेलेबल है रात में, मेरे पास तो कोई नहीं है, और इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मरे जा रहे हैं कि कोई है ही नहीं मेरे पास में। भैया, जब जिनकी शादी हो गई ना, जिन दिन उन लोगों से पूछ लेना क्या हाल है, कैसी जी कट रही है स्वामी जी जिंदगी। क्या कट रही है? तुम्ही ने तो की थी शादी जाके, तुम्ही तो चक्कर में फंसे थे। जो समय अभी आपका मिल रहा है बैचलर, प्लीज एंजॉय। किसी के चक्कर में मत पड़िए, जिसको आना है वो खुद आए, हम प्रपोज नहीं करेंगे। उसको आने दो ना, और उसके बाद भी मानेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। उसने के बीच में हम आ जाएंगे और प्रपोजल आपका निरस्त करवा देंगे। उसी के बीच में मेरा रोल है, प्रपोजल आने तक आपके हाथ में है। मेरी बात मानिए, ये थोड़े समय के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर है। मैं एक इंटरव्यू परसों पढ़ रहा था, एक एसडीएम का, कुछ उसको हायर क्लास में एग्जाम दे रहा था। बिकॉज ऑफ मोबाइल 100 एग्जाम में वो फेल हुआ। उसके बाद एक दिन पता नहीं उसको क्या क्लिक हुआ, उसने मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब फेंक फाड़ दिया। सिर्फ 4 से 6 महीना स्टडी किया, नाउ अब उसने आईएएस को क्रैक कर लिया। सी, वो पावर आपके पास में है, वो एनर्जी आपके पास में है, बट क्या हो रहा पता है, वो डाइवर्ट हो रही है। वो विवेकानंद इसी भारत देश के ही तो थे, वो जो ऋषि मुनि थे वो आपके ही देश के तो थे। वो सिर्फ फोकस किया ना। जो साइंस के हो, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, वो ध्यान से सुने प्लीज। ऋषि का मतलब ये नहीं होता कि जिसके जटा जूट है, लाल कपड़े है, दंड मंडल है, कमंडल पहना है वो ऋषि। नो, वो ऋषि नहीं है, डोंगी भी हो सकता है। तो ज्यादातर ऐसे मिलेंगे आपको। रावण भी इसी वेश में आया था। See, now question to you, न्यूटन ने कौन सा नियम खोजा? आंसर चाहिए आपसे। लॉ ऑफ मोशन। उसने क्या किया? न्यूटन के पहले सेब गिरता था या नहीं? बोले ही ना, मरे मरे क्यों बोले? गिरता था, गिरता था। तो न्यूटन ने क्या किया फिर? अभी छोड़ दिया आपने। न्यूटन के पहले भी सेब गिरता था, इसका मतलब वो जो लॉ है ग्रेविटी का, वो पहले भी एग्जिस्ट करता था।
आर्किमिडीज के पहले भी वाटर ऐसे ही था। आर्किमिडीज ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर को डिफाइन किया था। बस गिरते हुए सेब को ऑब्जर्वेशन में लिया कि ये सेब क्यों गिर रहा है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, और उसके नाम पर एक लॉ हो गया ग्रेविटी ऑफ लॉ। खोजा नहीं है, ध्यान रखिएगा, पहले से नियम एग्जिस्ट करता था। उस एग्जिस्ट किए हुए नियम को उसने सिर्फ क्या किया? देखा। व्हाट इट एग्जिस्ट करते हुए नियम को सिर्फ देखा, और उस देखने के कारण उसको कहा गया कि उसने ग्रेविटी ऑफ लॉ बनाया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ऋषि उसी को कहा गया जो मंत्र एग्जिस्ट करते थे उसको उसने सिर्फ देख लिया। दैट इज द विश्वामित्र, दैट इज द वशिष्ठ, दैट इज द अत्रि। वो आप भी हो सकते हैं। सिर्फ उन्होंने अपनी शक्ति को क्या किया? एक जगह लगाया कि सेब गिर रहा है तो क्यों। नियम नहीं बनाया, नियम पहले से था, उसको सिर्फ देख लिया। दैट इज कॉल्ड ऋषि। नाउ व्हाट इज माय पॉइंट? आपकी जो ये बैचलर लाइफ है, प्लीज इसमें एक बात, दो बात अलग रखिए। मैं सफलता के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सफलता के साथ प्रसन्नता को मत जोड़िए। क्योंकि मेरी क्वेश्चन है कि सफल व्यक्ति प्रसन्न होवे ऐसा जरूरी नहीं है। सफलता एक एकेडमिक है और प्रसन्नता बहुत लॉन्ग टाइम तक है। और जो बहुत अच्छे आज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनसे पूछिएगा उनका एकेडमिक क्या है, उनका एकेडमिक क्या है, लेकिन उनके पास दिमाग था और वो कहां से कहां चले गए। और आज की न्यू जनरेशन में ध्यान रखिएगा, आपसे ये नहीं मांगा जाता कि आप एकेडमिक, वो तो सब BA MA कर ही लोगे, आप कहीं ना कहीं से डिग्री मिल ही जाएगी, खरीद लोगे इधर उधर से। बाबा लोग भी डिग्री खरीद ले रहे हैं, उनको भी डीलिट की उपाधि मिल जाती है, आप भी ले लेंगे BA और MA। वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने किसी चीज में स्पेशलाइजेशन किया है क्या, आपको कुछ आता है स्किल के नाम पर। मैं देखता हूं एक बॉटल की कॉक बंजी, ढक्कन है ना इसका, इसकी बनाने की भी एक इंडस्ट्री है, छोटी सी चीज की, और वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, सिर्फ एक ढक्कन बना रही है। एक स्टेपलर की पिन, वो एक इंडस्ट्री है। जरा इस पर ध्यान दीजिए। एकेडमिक तो ठीक ही है, आप पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके प्रिंसिपल भी कह रहे हैं, सब कुछ यही नहीं है। आपकी पर्सनालिटी में जो डेप्थ नाम की चीज है वो गायब हो चुकी है। आपसे बताओ, हम डिग्री ले लेके बैठे चले, आपके पहले भी ना जानो कितनों ने डिग्री ली होगी, आप ही नहीं ले रहे हैं, आपके पहले सीनियर्स ने भी ली होगी। कौन क्या कर रहा है आपको पता है? सब वही डिप्रेशन, फिर वही 5 साल बाद आप कर लीजिए, फिर एक शादी हो जाएगी, फिर चुन्नू मुन्नू हो जाएंगे, चुन्नू मुन्नू को टाई पहनाओ, उनका डायपर बदलो, उसको ले जाओ, और कई लाइफ का चला। और अभी जो आपके पास टाइम मिला है कि किसी चीज में आप महारत हासिल कर लें, बट इस समय क्या बोला जाता है, सॉरी टू से, और कहावत बड़ी गंदी सी है, बट क्या बोलूं, हमारे फादर मुझको ये बोलते थे, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। जब दिल इसमें लग जाता है ना, तो अच्छी बातें माता पिता गुरु की समझ में नहीं आती, क्योंकि आप कहीं इंगेज हैं। कॉस्मिक आपके लिए क्या देने के लिए नहीं तैयार है। नाउ द फर्स्ट प्रिंसिपल याद रखिए, जो सबसे बड़ी मुझे कमजोरी दिख रही है, अपनी कंपनी को खुद को एंजॉय कीजिए, अपने होने को एंजॉय कीजिए। और जो अपने होने को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, ध्यान रखिए, वो दूसरे को कोई एंजॉय नहीं दे सकता। दुखी आत्मा, निराश आत्मा, वो दूसरे को क्या दुखी देगा। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई है, मरने के लिए तेरे बनाई। सैड सॉन्ग सुनकर दुनिया क्यों बनी है, ये सब क्यों बना है, क्योंकि तुम्हें धोखा मिल गया इसलिए। क्यों गए थे, मना तो किया जा रहा था, तो
बड़ा स्टाइल मार रहे थे तुम, फिर तो कहां से पैसे आ जाते पता नहीं ना। पहला मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी बैचलरशिप को एंजॉय कीजिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए। मैंने पहले ही बोला प्रपोजल आने दीजिए, देन वी विल से इट। लेकिन अभी आपको अपनी हैप्पीनेस की चाबी किसी की पॉकेट में नहीं रखना है। जो अपने को एंजॉय नहीं कर सकता वो दूसरे को क्या एंजॉय कराएगा। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? एक दुखी आत्मा, एक असहाय व्यक्ति, दूसरे को क्या करोगे तो तुम्हारे पास खुद ही नहीं है कुछ ना। ऑन द पॉइंट, द शेपिंग ऑफ यूथ के लिए मैं वहां पे भी आपको उसी का टीचर्स के लिए शायद मैं गया था, है ना? नहीं बाबू जी, वहाँ टीचर्स के लिए था ना जो एक टॉक थी। मैं आपको थोड़े प्रिंसिपल वही कहता हूँ। एक तो यूथ को मुझे लगता है वर्क हार्ड तो है ही है, सभी लोग रटा लेटा सीधा वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, बट मैं मानता हूं वर्क हार्ड करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। मर जाते कभी कभी सफलता नहीं मिलती, जो जरा सा पड़ता है इधर उधर करके उसको सफलता मिल गई। तो ये रटा रटा है नहीं, वर्क हार्ड वर्क हार्ड। तो सेकेंड थिंग इज, जो छिपी हुई चीज है मैं वो कहना चाहता हूं, कलेक्ट नंबर ऑफ ब्लेसिंग्स। What I'm saying, collect number of blessing। ये आपकी स्पीड को बढ़ा देगा। सक्सेस के लिए मैं 5 चीजें बोल रहा हूं, 2-3 चीजें आपके सामने आज एक्सप्लेन करता हूं। Now the first important thing is clear your vision। clear your vision, क्या बनना है? डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, इंजीनियर भी बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट भी बनना चाहते हैं, टीचर भी बनना चाहते हैं, सब कुछ बनना चाहते हैं। ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, ये भी पसंद है, वो भी, कोई नहीं चूज करेगा तुमको। क्लियर योर विजन, नाउ द फर्स्ट, उस पर आपको बोलने की जरूरत नहीं है। नाउ द सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पीड। आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाओगे? मैं क्लियर, मैं क्या कहना चाहूँ, स्पीड कैसे बढ़ेगी आपकी? स्पीड बढ़ाने का मैं आपको जो मेरा अनुभव है मैं बता रहा हूं आपको। कलेक्ट नंबर ऑफ द ब्लेसिंग्स, और वो ब्लेसिंग सिर्फ आपको 3 ही लोग दे सकते हैं, जो आपकी संस्कृति के सूत्र हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये 3 हैं, लेकिन हमको तो 3 अनाड़ी दिखते हैं, गंवार दिखते हैं। ये क्या पढ़ी लिखी है मुझसे ज्यादा, वो मैं तो इंग्लिश बोल लेता हूँ, इसको तो क्या आता है जी? आपकी माँ में वो दम है, अगर वो बोल दे तो भगवान भी उसको नहीं टाल सकते। अगर वो माँ बोल दे तो ध्यान रखना, बोलती नहीं अंदर से। क्यों? आपका आचरण ऐसा है। वो ऊपर से ब्लेसिंग देते हैं, पता है, अंदर से हमने उनका बहुत अपमान किया, इंसल्ट की है। कहां से ब्लेसिंग देगी आपको? एक कुत्ते को भी क्या चाहिए पता है? रिस्पेक्ट एंड लव। आप अपने फैमिली से, मदर से, ब्रदर से, फादर से जिस हिसाब से आप व्यवहार कर रहे हैं, और आप आशा करते हैं कि आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। पहले जब आप देखते थे ना ब्लेसिंग मिलती थी, कुछ था, वो अंदर से आता था। मैं कहना चाहता हूं, दिस इज इन वेदा से आशिष्ठो भव। आशिष्ठो मतलब कलेक्ट नंबर ऑफ द ब्लेसिंग्स। ये आपकी जिम्मेदारी है, बाय हुक और क्रूक किसी तरीके से आपके पास ब्लेसिंग होनी चाहिए। कैसे करेंगे ये आप जाने। और आपको सिर्फ सिंपल एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं, ब्लेसिंग के लिए बड़ों को सिर्फ एक चीज चाहिए, रिस्पेक्ट। यू टीचर्स कैसे नहीं ब्लेसिंग देंगे आपको? आप मिमिक्री करेंगे, आप पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे, आप पीठ पीछे कमेंट करेंगे, आपको लगता है कुछ मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला है आपको? गवा दिया आपने जो मिल सकता था उस टीचर से। शबरी कितनी पढ़ी लिखी थी, और शबरी को राम मिल गए, और बहुत सारे ऋषि मुनि बहुत पढ़े लिखे थे, उनको राम नहीं मिले। आपका हार्ट कैसा है वो भगवान देखना चाहते हैं।
इसलिए मैं पहली बात कह रहा हूं, स्पीड तेज करने के लिए आशिष्ठो भव, ये युवा के लिए, शेप के लिए सबसे पहली चीज है। कैसे करेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। कलेक्ट नंबर ऑफ द ब्लेसिंग एंड दे आर द ओनली 3 सोर्सेज ऑफ ब्लेसिंग, ओनली 3 सोर्सेज। फर्स्ट इज योर मदर, सेकंड इज योर फादर एंड सेकंड थर्ड इज योर टीचर। कर लीजिए, आपके सामने मिल रहा है, थोड़े समय के लिए है। ध्यान रखिए, माता पिता भी ज्यादा दिन नहीं रहने वाले होते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या खो दिया है। वो अभी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आपके पास में है ना। उनके रहने से क्या होता है, ये जिनके पास है ब्लेसिंग उनको पता है, मुझे पता है बात। नाउ द फर्स्ट इज collect number of the blessing for speed, vision, speed. Now third is I am talking about the power. मेरे को किसी एक स्वामी ने बोला कि प्रबोधानंद, तुम यूथ को डिफाइन करो, व्हाट इज यूथ। उन्होंने बहुत सारी चीजें आई, तो उन्होंने मुझे क्लिक दी। बोले जिसके पास जोश के साथ होश है वो युवा है। मैंने क्या बोला, रिपीट कीजिए ना। जोश के साथ होश है। होश मतलब नॉलेज, विवेक, और जोश के साथ मतलब एनर्जी। अब युवाओं से एनर्जी की क्या बात करें। एक सिलेंडर उठाने को गैस का कहा जाए ना तो उनके सब निकल जाते हैं। ये युवा है, ये युवा है। अरे युवा का जो चेहरा और उसके चलने का जो तरीका होना चाहिए सर, आपको रामचरितमानस में दिखा रहा हूं मैं। राम चलते थे तो उनकी कैट वॉक से शेर भी शर्मा जाता था, ऐसा लिखा है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। राम के उठने का तरीका और राम के बैठने का तरीका था कि शेर भी लज्जित हो जाता था। वो पर्सनालिटी में डेप्थ थी। आज का युवा, आपने दशहरी आम देखा है और जब उसको चूस लेते उसकी गुठली देखी है। आज के युवा का चेहरा ऐसे ही है। कुछ इसमें से भी बैठे होंगे महारथी से, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, है कुछ चेहरे पे कोई तेज ही नहीं है। सब जैसे लगता है धुआं उनके चेहरे पे ही सब आ चुका है। क्यों? आपके थॉट गड़बड़ है। नॉट ऑफ ओनली बॉयज के लिए नहीं कह रहा हूं, गर्ल्स के लिए भी। लावण्यमयी प्रतिभा होगी। काले और गोरे की बात नहीं कह रहा हूं। आप में से भी कुछ लोग हैं जिनके चेहरे को देखने से लगता है कि इसके अंदर तेज है। वो तेज किस चीज का? आपके पॉजिटिव थॉट्स का, आपके डिसिप्लिन का, आपके अंदर ये भावना है कि दूसरों की मदद की जाए। आप कभी बेईमानी नहीं करते, चीट नहीं करते। ध्यान रखिएगा, उसके शरीर के अंदर तेज आएगा। वरना हम चले जा रहे हैं, एक जैसे बना ली ना इस पे और इस पे टी शर्ट पहन ली और अपने आप को हिप्पी कट बाल रख लिया। पहले जो नहीं नहाते धोते थे वो ऐसे ही रहते थे हम लोग के, और वो अपने आप को क्या समझ रहा, स्मार्ट समझ रहा। एक धक्का दे तो गिर जाएगा। और लड़ाई भी होती है, हमने देखा है। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मारता कोई नहीं है। तो दम ही नहीं मारने की। मारने वाला पूछता नहीं है, मार के आ जाता है। ऐसा बनना है तो मार के आइए ना, फिर तो हम प्रोटेक्ट करेंगे। मार दिया तो मार दिया, हम तो अपने यंगस्टर हो गया ना झगड़ा, मार के आए, वेरी गुड। अब पीछे नहीं हटना है, देखा जाएगा जो होगा। गली का कुत्ता भौंकता रहता है, एक मारा पे ये क्या है? अरे जाओ तो शेर के तरीके से जाओ ना, फिर जाना है बिल्ली के तरीके से, भेड़ियों के तरीके से। बिकम अ यूथ। और वो तब हो सकता है जब आपके शरीर में वो तेज होना चाहिए। और दो चीजें मैं कह रहा हूं, शरीर में बल होना चाहिए और शरीर में तेज होना चाहिए। विवेकानंद में आपको क्या दिखता है? तेज भी है, बल भी है। दिखने से लगता है ऐसा युवा होना चाहिए। अभी आप करा लो, आप अभी इसमें करा जाए कि पुशअप मारने, अभी देखना क्या हालत होगी। ये वेट उठाना है तो हालत खराब हो जाएगी। क्यों?
वो चाउमीन और नूडल खा खा के मंचूरियन जैसा चेहरा बन गया है। जैसे मंचूरियन हो ना, उसका चेहरा देखा, वो चेहरा बना पड़ा है और नूडल जैसा शरीर बना पड़ा है, और उसमें वो बॉडी वाला वो डाल रखा है। सोचते हैं हम बड़े अच्छे आदमी, अरे गंधा रहे हो, बदबू आ रही है हमारे हाथ से, तुम बड़े अपने आप को सुगंधित समझ रहे हो आत्मा। युवा वो है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो नहीं देखना चाहे वो भी आपको पलट कर देखने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब आप में क्या है? तेज है। आप जिधर जाएं वो व्यक्ति आपको छिप के देखने की कोशिश करता है। इसके अंदर, आपके अंदर क्या है पता है? तेज। वो तेज किस चीज का ध्यान रखना, वो पार्लर का नहीं है, वो फेशियल का नहीं है, वो थोड़े समय में चला जाएगा। वो तेज किस बात का है पता है? आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स हैं। आपने साइंस में पढ़ा, ये जो हमारा ये मस्तक है ना, इतना एरिया, ये चुंबक है। मुझे लगता होगा कुछ लोगों ने वो यंगस्टर्स को मैंने पढ़ाया, अट्रैक्शन, बहुत सारी इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी किताब आई थी। ये मैग्नेट है आपके पास जो दिया गया है, पता है? ये आपको पता है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करके सब रखते हैं। बोलते हैं कहीं चोट लग जाए यहाँ नहीं लगनी चाहिए। बच्चे को भी क्या बोलते हैं? यहाँ नहीं मारना है। योग में भी ये बहुत बड़ा केंद्र है आपकी शक्ति का, ये मैग्नेट है। अगर आपने गलत थॉट लाया तो आपको गलत चीजें मिलेंगी। ये मेरा लॉ आप लगा के देखना। अगर आपने गलत सोचा तो आपको गलत चीजें मिलेंगी, क्योंकि आपने वाइब्रेशन कैसी फेंकी है? ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सी सिंपल, यू नो देयर इज अ कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है पता है? जो आप फेंकेंगे वही आपको वापस आएगा। वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। जो आप वाइब्रेशन दे रहे हैं कॉस्मिक वर्ड को, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता, आप वैसे ही आपके साथ में होगा। और आप कह के देखिए, ये जरूर होगा, ये होके रहेगा, ये जरूर होगा। आप देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बूस्ट होता जा रहा है। इसलिए मैंने पहली बात अपने लेक्चर में बोली थी, गलत लोगों का साथ छोड़ दीजिए। आपको बुरा लगे, उसको बुरा लगने दीजिए। गलत लोगों का साथ मत कीजिए। इनडायरेक्टली वे में आपको नहीं पता कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके ब्रेन के ऊपर। अब आप वैसा ही सोचना चालू कर देते हैं जैसा उसने आपके अंदर थॉट डाला, क्योंकि अभी आपके अंदर ऐसी शक्ति है जो चाहे वो बना दे। सी, आपने फियादीन्स का नाम सुना, जो बम ब्लास्ट करते हैं, सुना होगा ना? उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है और उनको ऐसा ट्रेन किया जाता है, तुम्हें यही करना है, तुम्हें यही करना है, यहाँ ब्लास्ट करना है, इसको ऐसा करना है, और वो करके आते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कैसी दी गई। वो यही ब्रेन तो है उनके पास भी ना। ब्रेन हिंदू और मुस्लिम नहीं देखता, आपने उसके अंदर क्या डाला ये इस पर डिपेंड करता है। आपने फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टा से क्या लिया अपने ब्रेन के लिए, ध्यान रखिए, ब्रेन वैसा ही फंक्शन करना क्या करता है? स्टार्ट करता है। फिर आपके पास वैसे ही वाइब्रेशन आएगी, वैसे ही लोग आएंगे। नाउ मैंने एक बात पहले बोली, विजन शुड बी क्लियर। सेकंड, स्पीड, आशीष ठोबवा। और थर्ड, पावर, बलिष्ठो भव। थोड़ा बलवान बनिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा रन कीजिए, और खाने भोजन के प्रति सावधान। कभी खा लिया तो चलता है, नो वे, लेकिन अपनी फूड हैबिट को बिगड़ने मत दीजिए। अभी अगर आपने बिगाड़ लिया तो सब शेप बिगड़ जाएगा आपका। इसके प्रति अलर्ट, यही आपको मैं कहना चाह रहा था आखिरी में। प्लीज मेडिटेशन 10 मिनट का स्टार्ट कीजिए। अभी से आपने कर लिया, आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी। 10 मिनट के लिए अकेले में
दीप को जलाकर और कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपनी बॉडीज पर ध्यान दीजिए। बॉडी मतलब क्या है? बॉडीज के पार्ट। एग्जाम्पल करके देखिएगा रात में, सिर्फ मैं अपने बॉडी के ये दोनों भ्रुकुटियों के बीच के पार्ट को देख रहा हूं। आपसे बताऊंगा, आपको गुदगुदी और आपको एनर्जी फील होने लगेगी जिस दिन आप करेंगे। ये पार्ट, ये जो आपके सिर का बीचों बीच हिस्सा है, फुल ऑफ एनर्जी है, और हमने उसको क्या कर दिया पता है? गवा दे रहे हैं। और अभी आप कर सकते हैं क्योंकि आप बैचलर है, मैं बार बार कह रहा हूं। उसके बाद आपकी सब एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कितने अच्छे तो भगवान ने आपको शरीर दे रखा। यहाँ पर ध्यान कीजिए, यहाँ पर ध्यान कीजिए, नाक के पॉइंटेड सिरे पर कीजिए, हार्ट पे कीजिए, गले के बीचों बीच कीजिए। कौन सी एनर्जी आपको नहीं मिल सकती? तो एक शाइनिंग पर्सनालिटी तो बनिए जरा। वरना कोई ना शरीर में दम है, ना शरीर में तेज है। कुछ बोलने को कहा जाए तो ना आई मीन मैं ऐसा कहना, मैं वैसा कहना, ये करके ना कम्युनिकेशन है आपके पास में। विजन, स्पीड, पावर। नाउ लास्ट ये मौका है, अपनी किसी हॉबी को डेवलप कीजिए। ये बाद में बहुत काम में आएगी। जब आपका सब साथ छोड़ देंगे ना, क्योंकि दुनिया ही स्वार्थी है, मैं आपको बता दूं। जिस दिन उसका काम निकल जाएगा तो आप अपने पार्टनर के साथ जी रहे मतलब चल रहा है, वो अपना कर रहा है, तो जीवन में उत्साह नहीं है कोई। क्यों? आपकी कोई हॉबी नहीं है। लर्न म्यूजिक, लर्न योगा, लर्न एक्सरसाइज। कुछ तो एक्स्ट्रा कीजिए जिससे आपकी पर्सनालिटी में डेप्थ आए, वरना पूरी लाइफ ऐसे निकल जाएगी, किताबों के बीच में निकल जाएगी, वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगी। और जरा सी आपकी कोई एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी है, वो आपकी लाइफ को बना सकती है। आप देख रहे हैं आजकल की जरा सी एक्टिविटी व्यक्ति को क्या नहीं बना दे रही। तो अब आपके पास सीखने का मौका है, तो क्यों नहीं सीख रहे हैं? आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, माइक, गाना, सिंगिंग में कुछ तो कीजिए। कुछ तो एक हॉबी बनाइए कि मेरी ये हॉबी है। सिर्फ वो आप जो कंपनीज में भेजते हैं ना, उसमें सब फेक लिखते हैं। आप क्या हॉबी है? बुक्स रीडिंग। को बुक पढ़ी है किताबें आपने? पूछूं राइटर का नाम नहीं। प्लेइंग कौन सा गेम आता है? बैडमिंटन खेल लोगे, क्रिकेट खेल लोगे, कुछ नहीं आता, सिर्फ फेक। लाइफ आपको क्या देगी वो भी तो देख रहे कि आप पूरा जीवन इल्यूजन एंड फेक में ही जा रहा है आपका। नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्किल। स्किल मतलब ये है महारत हासिल कीजिए। ये काम मैं ही कर सकता हूं, इस हद तक जाइए, ये काम मैं ही कर सकता हूं। इस टाइप का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो आपको 1000 लोग आपको पकड़ के ले जाएंगे कंपनी में, सर मेरा ये काम है, सर मेरा ये काम। फिर तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, अलग अलग चीजें सेटअप कर सकते हैं। कुल मिला के मैं आपसे बीच जो आया था, शेप ऑफ यूथ के लिए आशिष्ठो भव, कलेक्ट नंबर ऑफ ब्लेसिंग। जो मुझे दिखता है कि युवा अपने बड़े लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट मतलब यही है उनकी बात को मानना। पहला आशिष्ठो। दूसरा, अपना जो फिजिक आपका बॉडी है उसको जरा कुछ तो तेज तो लाइए। कोई अट्रैक्ट हो जाए तो देखे तो आपको कम से कम। हम ही लेके सबके पास एप्लीकेशन लेटर लिए चले जा रहे हैं कि हमको प्यार कर लो, हमको प्यार कर लो, हमको प्यार कर लो, भेजे जा रहे हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। अरे करो, आपके पास भी तो आने दीजिए जरा। ये हमारा पर्सनैलिटी ऐसा नहीं है। थर्ड इज द दृढ़िष्ठो भव, फर्म डिटर्मिनेशन। एंड मैंने विजन, पावर एंड स्किल के लिए मैं कह रहा हूँ, अभी वक्त है किसी स्किल को डेवलप कीजिए अलग से। म्यूजिक हो, आर्ट हो, कैलीग्राफी हो, कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ अलग से बनाइए। वो आपकी डिप्रेशन जब आप अकेले में होंगे ना, तो आपको बहुत काम में आएगी। नाउ लास्ट, जैसे आपको बताया, मैं 24 ईयर से ना, अभी तो इंदौर के मध्य प्रदेश, some part of the UP and some part of the Orissa and some part of
था पंजाब, बहुत सारे चिन्मय मिशन के सेंटर देख रहा हूँ। और मेरा ऐसा पहला नहीं, क्योंकि हमारा अभी बाबूजी हमने आपको पता होगा अभी चिन्मय विश्व विद्यापीठ आप कहते उसको, और हमारा उद्देश्य सिर्फ है जेएनयू की तर्ज पे लाना। और उसका बजट कितना है पता है आपको? 2700 करोड़ एंड 1500 करोड़ का कंप्लीट हो चुका था फर्स्ट प्रोजेक्ट इन केरला, तो आप गए ही, एर्नाकुलम, एंड द सेकंड इज द पुणे। 180 डिग्री कॉलेजेस ऑलरेडी रनिंग है। हम ऐसे ही यूथ चाहे, जैसे आपने नाम सुना वो संबित पात्रा को कौन जानता है ना, वो हमारे चिन्मय विद्यालय का पढ़ा हुआ है। राम माधव को कौन जानते हैं? आरएसएस का राम माधव, जिन्होंने गवर्नमेंट बनवाई, ही बिलोंग्स टू चिन्मय मिशन। भारतीय टीम का जो कोच है वो कौन है? चिन्मय मिशन युवा केंद्र मेंबर। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ सोचिए कि मैं आपको ग्लोरीफाई करना चाहूँ। मैं जब विजन क्लियर होता है तो व्यक्ति क्या नहीं, अभी तो हम पॉलिटिक्स में भी व्यक्ति को नेता बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को। अभी जो मेरा टेन्योर रहा इंदौर में, उसको बोलना नहीं चाहिए, अभी यहीं का पढ़ाया हुआ हमारा इनकम टैक्स कमिश्नर उज्जैन, साक्षी यहाँ की जज है, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर, बहुत सारे डॉक्टर, टीसीएस एम्प्लॉय, कई सारे तो मल्टीनेशनल कंपनीज में। अब मैं उनको देखता हूँ कि उनको कितने 7-8 बैच निकल चुके हैं, देख के खुशी होती, यस ये कुछ अलग दिखते हैं। शादी बच्चे उनको भी हैं, लेकिन विजन क्लियर है, कॉन्फिडेंस पूरा है कि कैसे देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं। वरना जैसे सब लोग कर रहे हैं, घिट पिट के चुन्नू मुन्नू हो गए, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर डाइवोर्स हो गया, फिर वही लेके आए सुबह से शाम तक, फिर वही सिगरेट पी, फिर खा पी के सो गए, लाए गई। कुछ विजन लीजिए, कुछ काम कीजिए अलग से, और अभी आपके पास समय है, आप कर सकते हैं ना। मैं आपको तो खुला ऑफर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सिक्का से बहुत पुराने समय से जुड़ा हूँ, 24-20 साल से मुझे हो गया सिक्का एसोसिएशन से। अभी आपके कई मैं बच्चों ये सिक्का के ही है, प्रेस में मैंने देखा, दैनिक भास्कर, उसमें वो भी सब सिक्का के पढ़े हुए बच्चे थे। जब मैंने उनको बालघर में पढ़ाया तो सिक्का में पढ़ रहे थे, वो नाउ दे आर द प्रेस रिपोर्टर ना। अभी मैं एक नया मेरे दिमाग में आया 2 संडे पहले ही, नया बैच लेकर, दैट इज कॉल्ड चिन्मय युवा केंद्र। इज कॉल्ड चिक, CHYK, हम लोग उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, चिक, CHYK, चिन्मय। ये पूरे इंडिया में है, इसकी सब बॉडीज अलग अलग है। नाउ मैं यहाँ के यंगस्टर्स के लिए एक टेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड साधना पंचकम। जीवन में छोटी छोटी साधनाओं को कैसे करना चाहिए, बड़ी बड़ी नहीं। फ्रस्ट्रेशन को कैसे सहे, एंजाइटी को कैसे दूर करें, जब आपको कोई गाली देता है तो क्या करें उस समय, अंडर एस्टिमेट करता है कोई, तो हमें उसका रिप्लाई कैसे देना है। दैट बुक नेम इज कॉल्ड साधना पंचकम, रिटन बाय आदि शंकराचार्य, राइट। और जरूरी है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि यंगस्टर्स के लिए मेडिटेशन जरूर होना चाहिए। 10 to 15 मिनट्स आप जाएंगे तो ये आगे तक आप में फिर कंटिन्यू होगा। तो एवरी संडे 12 बजे से 12 बजे से मैं 1 से 1.5 आवर का स्टडी। मैं ये चाहता हूँ, जब आप कंपनीज में जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि आप किसी विषय पर कुछ बोलिए, तो आपको बोलने का तरीका ही नहीं पता। मैं देखता हूँ, ना माइक पकड़ने का तरीका पता है, ना आवाज में दम है, ना अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ना आपके पास वर्ड्स है। क्यों? प्रैक्टिस नहीं की। अभी कुछ दिन पहले मैंने यंगस्टर्स के लिए आपका GDA, नेशनल इनकम, मैंने बोला ये टॉपिक्स आपको तैयार करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने हैं, जो आजकल की क्वेश्चंस आ रहे हैं। मान लीजिए भारत का नेशनल इनकम, भारत का टैक्स, आपको उस पर 10 मिनट बोलना है, और हमारे सब यंगस्टर्स पैनल बना के बैठेंगे, आपको बोलना है माइक पर, और हम भी आपको ध्यान से सुनेंगे और आपसे बीच में क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, आपने ऐसा क्यों कहा। और उस समय व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आता है, सबके सामने क्वेश्चन उठाएगा। उसी समय आपको शांत रहकर
मेरे क्वेश्चंस का क्या देना है, आंसर देना है एंड कूल रहकर आगे बढ़ना है। और जो गलती है उसको तुरंत क्या करना है, सुधरना। और दूसरे का नंबर आएगा, फिर वो पूछेगा आपसे, इसको बोलते हैं पैनल में बैठकर। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आपकी कम्युनिकेशन सुधरे और आप जो बोलना चाहते हैं वो विजन तो क्लियर हो कि आपको पता तो हो। वो जरूरी, उसके लिए आपको पहले होमवर्क करके मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप जाइए, बोलिए, अपनी बात को रखिए। और कोई विरोध करता है तो गलत है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। इफ यू रियलाइज यू वर रॉन्ग, हैव करेज टू एडमिट इट। ये सबसे बड़े होने की निशानी है। इफ यू रियलाइज यू वर रॉन्ग, हैव करेज टू एडमिट इट, प्लीज एक्सेप्ट इट, अपोलोजाइज कीजिए इसको। कम्युनिकेशन सुधारिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पर अभी मैंने पिछले 2 बैच में, मुझे मान लीजिए कमिश्नर से मिलना होता है या किसी से, तो मैं कहता हूँ मेरे जाने के पहले आप मिल के आइए, टाइम लेके आइए। चाहिए अब ऑफिस में मिलने का तरीका ढूंढिए, पीयून से बात करने का तरीका ढूंढिए, कमिश्नर के सामने पुटअप कर रखने, रस समझिए कैसे रखते हैं इस चीज़ को। होर्डिंग लगानी है, डिज़ाइन कीजिए और टाई अप कीजिए, फंड हम आपको दिलाएंगे। आप होर्डिंग डिज़ाइन करके अभी का अभी 3 घंटे के अंदर चाहिए। क्या जाता है, आपको डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, फ्लैक्सी कंपनी बैठी है, उठा के टांग के आइए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए, ये सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बनना है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ का बिजली का फ्यूज चला गया, फ्यूज सुधार दो, तो सब बताएंगे नहीं वो कर दीजिए, ये निकाल दीजिए, एक तार इधर से ले आइए, एक तार इधर से ले। खुद करके बताओ, वो कोई नहीं करने को तैयार होता है। इसलिए मैं यंगस्टर्स को चाहता हूँ स्पेशल किसी चीज़ में आपको महारत हासिल होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में। ज़रूरी नहीं कि हमको हर फील्ड आती हो। इसलिए मैं एवरी संडे, अभी नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप इंस्टा पे देखिए, मेरा किस नाम से, प्रबोधानंद से है इंस्टा पे, और फेसबुक किस नाम से, चिन्मय मिशन इंदौर, और इंस्टा प्रबोधानंद। ये भी अभी किसी ने रात में, मेरे ख्याल 2 दिन पहले इन बच्चों ने, 2-3 लोगों ने रात में 1:30-2 बजे तैयार किया था। उसमें भी मैंने 20 दोष निकाले हैं अभी बैठ के, ये गलत है, ये गलत है, इस फोटो के साथ ये मैच नहीं होता, इस फोटो के साथ ये मैच नहीं होता है। काम करो, सीखो। लेकिन जिसने किया इन 2-3-4 में, एक और थी, कम से कम आया तो ट्रेनिंग तो मिली, और आपका प्रेजेंटेशन सबके सामने जा रहा है, तो इनका भी जो कॉन्फिडेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही तो वक्त है लर्निंग का। सिर्फ बातें और सिर्फ अपनी पोस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर मुंह इधर कर दिया, स्पाउट इधर कर दिया, 4 मुंह इधर कर, बाल इधर दिखा दिया, बोले मेरे को लाइक्स आ रहे हैं एंड पर, वो तो ऐसे भी आ जाएंगे, आप कुछ नहीं करो तो भी आ जाएंगे बेकार के काम में। थोड़ा क्रिएटिव काम कीजिए ना समाज के लिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए, कुछ अपनी पर्सनैलिटी में सुधार, 3-4 साल का समय है आपके पास में, प्लीज ज्वाइन चिन्मय युवा केंद्र। ना आपका क्वेश्चन होगा कितने पैसे लेंगे आप? हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। हमें आपका चाहिए डिवोशन एंड टाइम, कि मेरे टाइम का यूज हो और आपको मैं कुछ सिखा सकूं। कहाँ पर? चिन्मय शरण, देयर इज अ बिग ह्यूज ऑडिटोरियम, यहाँ 300-400 लोग बैठ सकते हैं। देयर इज अ क्लासरूम, वहाँ 100-150 लोग बैठ सकते हैं। देयर इज अ पॉइंट प्रेजेंटेशन, हम लोग उसको लाइव भी देखते हैं। आप 12 बजे आइए, हम लोग गुरुकुल पद्धति से प्रार्थना कर कर, मेडिटेशन कर कर, आपको चैंटिंग सिखा कर और कुछ चीज़ें पढ़ाकर आपको चाहूँगा कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए। ये कैसा है? फ्री ऑफ कॉस्ट पर। कितने? 12 बजे ओनली, एवरी संडे एट 12 PM। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद। और सिक्का की गवर्निंग बॉडी, हमारे हरि जी हैं, बाबू जी हैं, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। You have any question? ऐसा पढ़ाया कि सब सॉल्व भी हो गया यार, कुछ आया ही नहीं समझ में, ये तो सब कुछ ज़्यादा सॉल्व हो गया आपके। यस
क्वेश्चन है कि ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वेरी गुड। सबसे बड़ी चीज पता है, हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है। पहले हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। जब आप अपनी क्षमता जान जाएंगी तब आप ओवर थिंक करना बंद कर देंगे। एग्जाम्पल, मुझे ये पता है कि मैं 1.5 घंटे बोल सकता हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा सोचूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरी क्षमता इतनी है। जिस पानी की टंकी की क्षमता 1000 लीटर की है और उसको पता है, तो आप अगर पानी डालोगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा ना। अपनी काबिलियत अपने आप पहचानिए, क्षमता। जिस दिन आप अपने को पहचान जाएंगे ना कि मैं इतने पानी में हूँ, तो आप उससे ज़्यादा नहीं सोचोगे। सोचते तब ज़्यादा है ख्याली पुलाव जब हम अपने आप को समझते नहीं है ठीक से। हम ये भी कर लेंगे, हम 4 घंटे पढ़ लेंगे, 2 घंटा सवेरे पढ़ेंगे, 4 घंटा रात में पढ़ेंगे, फिर कॉफ़ी पी के फिर 1 घंटा पढ़ लेंगे और 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। तो अपनी सीटिंग पहले देखिए कि आप 1 घंटे बैठ सकते हो, 1 घंटे का ही प्रोग्राम बनाएंगे। हम आधे घंटे बैठ सकते हैं तो आधे घंटे। तो अपनी क्षमता को पहले क्या कीजिए, पहचानिए। ओवर थिंकिंग। यस। एक और क्वेश्चन था, इमोशनली खुद पर कंट्रोल कैसे रख सकते हैं? वेरी गुड। ये सबसे बड़ी गर्ल्स में बहुत प्रॉब्लम पाई जाती है, यानी इमोशनली वीक, और उसी का फायदा उठाया जाता है। इमोशन शुड बी गवर्न बाय इंटेलेक्ट। प्लीज, emotion should be governed. There is the two faculties, the emotion and the second faculty is the thought. इमोशन क्या होती, कभी एक जैसी नहीं रहती, zigzag, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, ऐसी चलती है लाइफ। बट जब इंटेलेक्ट की होती है ना, तो फिर वो कैसी चलती है पता है, एक जैसी। तो इमोशन शुड बी गवर्न बाय इंटेलेक्ट। जरा बुद्धि से पूछिए कि ये इमोशन ठीक है, या बुद्धि आपको बता देगी। एग्जाम्पल, आपको बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बोलती है आज चलो ये मूवी देख के आते हैं, वेरी गुड। थोड़ा अपने इंटेलेक्ट से पूछिए कि वो क्या कह रही है। वो कहेगी कि अभी तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि भी बहुत सारे काम हैं, टीचर भी हैं, पढ़ाना भी है, घर पे भी जाना है और अभी बंद नहीं करना चाहिए। तो ये किसने आपको निर्णय दिया, बुद्धि ने। आप उसको फॉलो करो। जब बुद्धि कहेगी जाना चाहिए, देन इट्स रॉन्ग। तो अपने मन की चीजों को किसकी फैकल्टी में भेजिए पता है, इंटेलेक्ट। हम इंटेलेक्ट तक पहुंचाते ही नहीं है, हम मन ही तक निपटा देते हैं, इसीलिए हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड इमोशन शुड बी गवर्न बाय इंटेलेक्ट। लड़कों नाक मत कटाओ यार। सभी को नमस्कार, मेरा नाम निवेदिता झाला है। स्वामी जी, मेरा सवाल ये है, जैसा कि अभी आपने भी कहा कि आज के युवा के पास बहुत सारी चीज़ें कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो हम कैसे खुद के पोटेंशियल को पहचाने और कैसे ये जाने कि हमारे लिए क्या सही है, हम क्या कर सकते हैं? देखो, अपने आप को अपने आप ही हम जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। हम कितने पानी में हैं ये कौन जानता है पता है, हम ही जानते हैं। तो सब अपने अपने बारे में तो सब जानते हैं। हम दूसरे के सामने कुछ और प्रेजेंट करते हैं, हम वो होते नहीं है। तो पहली बात, जो हम हैं उसको पहचानिए। और इससे अलग बात कह रहा हूं, मैं जैसा हूं, मुझे यदि कोई इसी वे में एक्सेप्ट करता है उससे प्यार कीजिए। उसकी शर्तों पर प्यार नहीं होगा कि वो मुझे कैसा देखना चाहता है। नो, मैं जैसा हूं या मैं जैसी हूं, मैं ऐसी ही हूं। अगर तुम्हें लगता है तब ठीक है, तुम बोलोगे नहीं तुम ऐसा कर लो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, नो वे। पहली बात, हम अपनी क्षमता को खुद पहचानते हैं कि हम कितने पानी में हैं, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, लाइफ में कोई एक व्यक्ति ऐसा रखिए जो आपको सही सलाह दे सके। पॉलिटिकल पार्टीज भी रखती है, पता है आपको? जैसे मोदी जी थे, नृपेंद्र मिश्रा के ना निजी सचिव, लालू यादव, जनेश्वर मिश्रा, सबकी पार्टी का मैं बता रहा हूँ, मायावती, सतीश मिश्रा, जो उनके फैसलों को देखते हैं
जैसे नीतीश अभी पलटू राम, मान लो इन्होंने पलटी, उनके भी फैसलों को कोई देख रहा है। एक व्यक्ति कोई चुनिए जो आपका दुरुपयोग नहीं करे, आपकी इमोशंस का, आपके इंटेलेक्ट, लेकिन आपके निर्णयों में वो क्या होना चाहिए, साझेदार होना चाहिए। तो कभी कई बार हमको लगता है कि इतना टेंशन है, बट इतना टेंशन होता नहीं है। वो आपको बताएगा इतना अभी सीरियस होने की जरूरत। दूसरे वाले को पता लगता है सीरियस होना चाहिए एंड यू आर नॉट गेटिंग सीरियस, वो आपको बताएगा। किसी एक पर्सन को अपनी लाइफ में आने दीजिए, वो कोई होवे, वो मुझे चिंता का विषय ये, वो आपका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे एक पर्सन को चुनिए लाइफ में। चलो लास्ट बच स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी मेरा सवाल था कि जो अपना मन होता है उसको अपन कंट्रोल कैसे रख सकते हैं? डू सम जंप। शुरुआत में क्या करना चाहिए पता है? कोई नाम लेकर, इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है। योग में एक त्राटक कराया जाता है, पता है? मोमबत्ती या एक उंगली को ऐसे सामने रखकर एक तक देखते हैं। डू सम प्रैक्टिस, ऐसा कीजिए। फिर कोई एक नाम लीजिए किसी भी प्रभु का, और उसको एक माला करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। श्री राम 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 राम। तो धीरे धीरे आपके ब्रेन में जो बिखराव है ना, वो एक जगह एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है। फिर आप में पावर स्टार्ट होती है किस चीज़ की, मैं जो चाहूँ वो सोच सकता हूँ। ठीक है, दिस इज द एक्चुअली रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। मेरे गुरु जी इसको ऐसा समझाते थे कभी। एक व्यक्ति है, वो 5 करोड़ का कुछ बंडल लेके जा रहा है, उसको नोट गिनने हैं कि कितना है, उसको जल्दी है, तो चौराहे पे ही खड़ा था। तो उसने एक व्यक्ति को बोला कि भैया तुम इसको गिन दोगे तो इसका 30% तुमको दे दूंगा, जल्दी से गिन दो। तो वो आदमी भरे चौराहे पर गिन लेगा कि नहीं गिन लेगा नोट? क्यों गिन लेगा? क्योंकि उसको 30% मिल रहा है गिनने का। जहां हमारा फायदा होता है वहां सब मन लग जाता है। जहां मेरा फायदा होता है वहां एकाग्रता भी आ जाती है, वहां कंसंट्रेट। और जहां हमारा फायदा नहीं होता वहां हमारा मन नहीं लगता। तो आपको पहले ये देखना चाहिए इस चीज को प्राप्त करने से मुझको क्या मिलेगा। धीरे से यदि आप प्रैक्टिस जो स्टार्ट करेंगे, जो मैं कह रहा हूं, जब की, त्राटक की, सवेरे 2-10 मिनट क्या करेंगे, एकांत में बैठने की, मोबाइल को दूर रखकर, आपको बहुत लाभ मिलेगा। डू सम जप। थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब मशीन बन रहे हैं, लाइक हम सिर्फ काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना। लेकिन जैसे आपने बताया कि खुद के लिए भी सोचना ज़रूरी है। बट अगर एक चीज़ है कि अगर हम खुद के लिए सोचेंगे तो हम स्वार्थी भी कहलाते हैं, कई बार कहलाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम सब मशीन बन जाएंगे तो वो टाइम निकल जाएगा ना। अगर हम खुद की हैप्पीनेस ढूंढेंगे तो कैसे खुद को भी ढूंढना चाहिए, मतलब कैसे खुद को भी ढूंढे हम? देखो, खुद को सोचना, स्वार्थी अगर कोई कहता है तो कह दो हाँ मैं हूँ स्वार्थी, वो टू है। जब मैं ही खुश नहीं रहूंगा तो मैं दूसरे को खुशी कैसे दूंगा? तो पहले मैं तो तैयार हूं, तो उसके लिए मुझे तो पहले अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तभी तो मैं किसी को दे सकता हूं। जब कंपनी अपने आप में प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो वह अन्य चीजें, CSR मनी कैसे दे सकती है? कंपनीज के एम्प्लॉइज को सैलरी कैसे बढ़ाएगी जब तक उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही होगी? तो पहला काम ये है, और अध्यात्म कभी इसको स्वार्थी नहीं कहता, ये कविताओं में पढ़ा होगा। मैं कहता हूं पहला काम है स्वयं को मजबूत और प्रसन्न बनाओ। अगर कोई कहता है कि स्वार्थी, हाँ ठीक है, आप अपना बना लो, देख लो, आप करते हो तो दूसरे का आप ही कर लो जाके। आपको स्वयं के बारे में खूब सोचना चाहिए। और मैं उल्टा कहूं, सब अपने अपने बारे में सोचने लगे ना
तो समाज सेवा की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने अपने बारे में सोचो ना, तो दूसरे को क्या आने की जरूरत है, तो समाज सुधर जाएगा। मैं अपनी गाड़ी लेन में लेके जाता हूँ, आप अपनी लेके जाइए, आप अपनी जाइए, आप अपना कूड़ा डस्टबिन में डालिए, सफाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सब अपना अपना करें। तो पहले आप, ये स्वार्थी की परिभाषा ही गलत दी गई। स्वार्थी वो है दूसरों को मारकर सिर्फ अपना ही देखना चाहता है, दैट इज द सेल्फिश नेचर। इसको मार दो और इसका मिल जाए, दैट इज द सेल्फिश नेचर। इसलिए इससे दोस्ती करो, दैट इज द सेल्फिश नेचर। तो अपने आप को मजबूत बनाओ जितना हो सकता है। ओके, थैंक यू अगेन आप सबका, आपने हमें धैर्यपूर्वक सुना। और अगर आपको कोई गलत बात ठेस पहुंची तो आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, आपको जगाने का था कि आप जागिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का सेशन था बहुत ही व्यावहारिक ज्ञान से परिपूर्ण था। आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान आज स्वामी जी ने कर दिया है, इसका मुझे पूरा पूरा भरोसा है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें भी थी जो आपके ही नहीं हमारे दिमाग में भी चल रही थी। और उसका जो आंसर आपने दिया है स्वामी जी की, अपने आप को हम स्ट्रांग बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है कि खुद पर हम मेहनत करें और अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। प्लीज शेयर इंस्टाग्राम एंड गूगल फॉर्म, जरा उसको भरिए और देखिए, और कुछ क्वेरीज है तो मुझे भेजिए गूगल पर और उस फॉर्म पर। इंस्टाग्राम पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, जो भी सोशल मीडिया के मोड्स हैं, जाकर कुछ कीजिए बस, है ना। थैंक यू। हमारे भारत में एक परंपरा है अतिथि देवो भव, और आज हम सब जैसे कि आनंदित हैं कि परम पूज्य स्वामी जी हमारे साथ में हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वामी जी, वी वुड लाइक टू फेलिसिटेट यू फॉर दिस। आई विल इनवाइट आवर चेयरमैन मिस्टर पी बाबूजी सर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर आर श्रीधर सर ऑन स्टेज। Principal Madam, please come on stage. I will request Babuji sir to felicitate Swami ji with a shawl and shreefal. हमारी तरफ से बहुत ही प्रेमपूर्ण भेंट। I will request Dr. R. Sridhar sir to present a memento to Honorable Swamiji. Let's have a huge round of applause. सो मच सर। हमारे कॉलेज में जो हमारे विद्यार्थी हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, और अभी हमने कुछ दिनों पहले हमारे कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर कैंटीन का एक डेकोरेशन किया है, उसमें बहुत अच्छा काम किया, पेंटिंग वगैरह बनाई है। उन बच्चों को आज हम यहाँ पर बुक्स दे के सम्मानित करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि उन बच्चों को हम वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करें, अवार्ड करें। मैं नाम ले रही हूँ, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर मंच पर आ जाएँ। Ayush Verma, please come on stage. Yash Jain, Shekhar Bhattauria, आप आते जाएं, लाइन अप होते जाएं। आपके सब साथियों के लिए तालियां बजाएं। शेखर भदौरिया, नीलाक्षी भाले, केथल सांखला, उसके बाद
भावेश कवारे, आप भी रेडी रहिए। नीलाक्षी स्टेज पर। हेतल। आफ्टर भावेश, विनय एंड विनीत जादौन, प्लीज बी रेडी। देखिए, तालियां बजाते रहिए और उत्साह वर्धन करिए। आपके सामने आयुष जैन, दर्शित नागर, अदिति शर्मा रेडी रहिए। फोटो लेने दो कि नहीं लेने दो? लो ना सामने देखो वहाँ लो। कुणाल लोधी, हर्षित साहू, हर्षित साहू, अदिति शर्मा, शुभांगी द्विवेदी, मीमांसा ठाकुर। Please have a huge round of applause for all these students. Thank you so much, Swami ji. स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके हाथों से हमारे इन विद्यार्थियों को ये बुक प्राप्त हुई है। बुक जो कि हमारा सबका जो है एक साथी है। कभी भी हमको कोई चीज़ की सीख लेने की ज़रूरत होती है तो हम बुक्स की तरफ देखते हैं और कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो बुक आपके बहुत अच्छे साथी बने और ये बुक्स से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें अपनी लाइफ में, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी चेयरमैन सर से और हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी सर और प्रिंसिपल मैडम से कि वो स्वामी जी को फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स दे के उनको सम्मानित करें, उनको फेलिसिटेट करें। हमारे प्रिंसिपल मैडम सप्रेम भेंट हमारे शिक्षा परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन सर का और हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी सर का। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर आप प्लीज आगे यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण करें। बस हाँ, 2 मिनट स्वामी जी। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं अपने सिका कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर वाग्मिता दुबे को इनवाइट करती हैं कि वो आए और वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। Thank you, Pratibha ma'am. Good afternoon. How are you all? Quite vibrant now. Good afternoon to respected Honorable Chief Guest, and on behalf of Sikka College, I extend a heartfelt thanks to Honorable Chief Guest Swami Prabodhanand Saraswati ji, who is the center head of Chinmaya Mission Indore, for this enlightening session that we have just experienced. So thank you Swami ji for this, and once again a huge round of applause. Our gratitude knows no bounds as we reflect on the invaluable insights shared by the esteemed speaker.
Today we are fortunate enough to be in the company of someone who has not only embraced the responsibility of shaping minds, but has also mastered the art of instilling values that transcend the pursuits of life. The session on shaping the youth has been nothing short of a transformative journey. I can see the students very much benefited by today's session. Not that just the students, but each one of us who is present here is benefited by today's session. And few things that Swami ji said, बहुत अच्छी चीज़ें थी जो आपके सीखने के लिए थी आज, लीडरशिप को लेके, संगति को लेके, जो कि आपको सीखनी चाहिए इस एज में, बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इन सब चीज़ों से क्या सोच के क्या कर ले, वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बाद में हमको समझ में आती हैं कि हमारे साथ हमने कुछ बिना सोचे ही हमने क्या चीज़ हमारे साथ हो गई. तो बहुत कॉन्शियस हो के अपने डिसीजंस लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जो कि स्वामी जी ने हमसे आज शेयर की. पावर ऑफ पॉजिटिविटी को उन्होंने हाईलाइट करा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही वर्क करना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके इस एज में आपको समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है. And I would like to thank our Honorable Chairman Sikka Educational Trust, Mr. P. Babuji sir, Managing Trustee Dr. R. Sridhar sir, जिनकी वजह से एक्चुअली ये सेशन पॉसिबल हो पाया है. उन्होंने हमें हमेशा हर इस तरह के सेशंस में इतना अच्छे से गाइड किया, इतना सपोर्ट किया कि हम इस तरीके के सेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज कर पाते हैं. सो हमारे ट्रस्टीज के लिए, हमारे चेयरमैन सर, मैनेजिंग ट्रस्टीज सर के लिए अगेन अ बिग ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. एंड उनकी गाइडेंस के बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता. डिस्टिंग्विश्ड इनवाइटीज के लिए अगेन ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. एंड प्रिंसिपल सिक्का कॉलेज डॉक्टर गुंजन शुक्ला मैम फॉर बीइंग द गाइडिंग लाइट ऑलवेज. हमारे जो संगीतकार थे दोनों सर, जो कि सिक्का 78 और निपानिया से आए थे, उन्होंने 1 मिनट में हाँ बोल दी थी कि हाँ हम आ जाएंगे. सो उनके लिए भी तालियां. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वॉलंटियर्स, उनके लिए बिग ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आपके लिए. एंड जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग टीम है ऑफ कोर्स, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कोऑर्डिनेटिंग टीम को, प्रतिभा मैम एंड टीम. एंड जो भी टीचर्स इन्वॉल्व हैं, एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर, ईच वन ऑफ यू, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस है बिकॉज आप यहाँ पर इतने अच्छे माहौल में आज प्रेजेंट हैं. सो इसके लिए आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एप्रिसिएशंस. थैंक यू. बी एक्सुबरेंट. Thank you so much, madam. Now, I will request everyone to please stand for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. स्टूडेंट्स प्लीज